हेलो क्लास 5। दिस इज़ योर एस्से। आपके पास ये एस्से ऑलरेडी आ चुका है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम टू यू ऑल। ये एस्से आपका एक का फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में है दैट कम अलाइव इन इन योर इनकाउंटर। अब आप देखेंगे कि कैसे आप कैसे है, किस बारे में है और इसको आपने कैसे एक्सपीरियंस किया इस सबको। I had been reading late because I wanted to finish the thrilling Harry Potter novel. I must have fallen asleep with the book next to me because I woke up to loud noises from outside. My mother was shouting at someone. I ran out in pajamas to see my drawing room in shambles. A boy of 14 with round spectacles was standing in the middle of the room in flowing robes. He had a magic wand in his hand, and bright sparks were flying from its end. My eyes went round. Was it my imagination? Harry Potter? The boy wizard was standing in our drawing room. He turned towards me and said, I have been following a notorious dragon for some time now. I got the news that it entered the Himalayan jungle, so I decided to come here. He told us that before he could trap it with his spells, it had entered our garden. The dragon did not like being disturbed because it was taking its afternoon nap. Hence, with a swish of its tail, it had thrown our drawing room in tizzy. He burned the curtains and sofa upholstery. Harry saved my mother from being swallowed at the nick of time. We sat at the chaired dining table and ate a hearty lunch which mother had prepared in honor of our valued guest. Harry asked me to show him the countryside. I told him we would have to cycle because I did not have a flying car. He smiled and caught my hand and with circled his wand over us, muttering his magic spell. I opened my eyes to see we were sitting in a on a big rock on the banks of the river Tista. We sat talking a long while. We sat talking a long while. He told me his various adventures, which had yet to be written. Hermione was working on a drug company. She was going to prepare a medicine which would cure little children of dreaded disease like cancer. Ron had become a banker in London. Harry was a teacher at Hogwarts and was called often to stop these mythical creatures from entering the normal world. Night had fallen. Mother would be worried for me. Harry came to leave me. I forced him to have a hearty Indian dinner. He loved the dessert my mother had prepared in his honor. I went into my room, rubbing my eyes with sleep. I think Harry had tried to cast a spell so that I would forget this day. I would forget this day. Lucky for me, his charm did not work for me. Thus, I was able to tell this tale. This essay you have is a very interesting one, as you can all read here. This is the essay you are all going to read and write, and you will learn this very passionately because we all love the Harry Potter series and everything. सो दिस इज़ हेयर इट गोज़। ये जो आपका हिस्से है आप सभी को बहुत पसंद होगा और आप पसंद भी करेंगे क्योंकि ये सब हैरी पॉटर में से है। एक बच्चा होता है जो यूजुअली रोज़ की तरह अपना एक हैरी पॉटर नावल है जो वो पढ़ रहा है और वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है और अचानक से उसकी आँख खुलती है कुछ शोर से, जो उसकी मम्मी शोर करती हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को देखकर, और वो अपने पजामाज यानी अपने रात के कपड़ों में ही बाहर की तरफ भागता है अपने ड्राइंग रूम की तरफ। तो वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। एक 14 साल का लड़का गोल चश्मों के साथ उसके ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ा हुआ है, जिसने एक छड़ी हाथ में ली हुई है जिसके एक सिरे से काफ़ी सारी चिंगारियाँ निकल रही हैं, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कोई और नहीं, इट वाज हैरी पॉटर, वो जादूगर जिसके बारे में मैंने कितना पढ़ा है। और जैसे ही वो मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखकर ये कहा कि मैं एक ड्रैगन, बहुत बड़े डरावने ड्रैगन का फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला और जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया हूँ। मुझे सुनने को मिला कि वो हिमालयन जंगल्स में है।
जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और फिर ये वो सोचता है कि इससे पहले कि मैं उस ड्रैगन को पकड़ पाता, वो मेरी आंखों से गायब हो गया और वो ओझल हो गया और उसने आपके गार्डन में एंट्री करी। ठीक है, वो आपके गार्डन में आ गया। द ड्रैगन डिड नॉट लाइक बीइंग डिस्टर्ब बिकॉज इट वॉज टेकिंग। और फिर ड्रैगन को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो सो रहा था, और जैसे ही उसको डिस्टर्ब किया गया, उसने गुस्से में आकर बहुत कुछ करा। वहाँ का उसके ड्राइंग रूम के पर्दे जला दिए, सोफ़ा बहुत ख़राब हाल में कर दिया, सब कुछ बहुत हौच पौच कर दिया। हैरी सेव्ड माई मदर फ्रॉम बीइंग swallowed एट एन nick ऑफ टाइम। और उसकी मम्मी को भी बचाया। किसने? हैरी पॉटर ने, उस बच्चे की मम्मी को, who was dreaming all this. We sat at a chair dining table and ate a hearty lunch. फिर उन लोगों ने लंच खाया एक साथ बैठकर, जो उसकी मम्मी ने उन सब के लिए बनाया था। हैरी ने फिर कहा कि चलो मैं तुम्हें और जगह घुमा कर लाता हूँ। आई टोल्ड हिम वी वुड हैव टू साइकिल बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ फ्लाइंग कार। तो उसने कहा कि हम दोनों को साइकिल से जाना पड़ेगा। लेकिन हैरी ने उसका हाथ पकड़कर अचानक से कुछ मैजिक स्पेल किया और वो लोग कहाँ चले गए, और वो लोग चले गए काफ़ी आगे तक। और उसने देखा, जब उसकी आंखें खुली तो वो लोग एक बिग रॉक पे बैठे हुए थे, जो कि रिवर टिस्टा के पास था। वी सेट, हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, हमने कुछ बातें करी। ही टोल्ड मी वेरियस एडवेंचर्स, ने मुझे कई एडवेंचर्स उनके बारे में बताया, जिनके बारे में अभी लिखना बाकी है। हरमाइनी जो थी वो अब एक दवाई की कंपनी में काम कर रही थी, और एक ऐसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए दवाई ढूंढ रही थी जिससे काफ़ी बच्चे बचाए जा सकते हैं। एंड ऑल ऑफ देम वर ऐसे बच्चे जो कि कैंसर से जूझ रहे थे, जो कि कैंसर से विक्टिमाइज थे। ठीक है। रॉन हैड बिकम अ बैंकर इन लंदन। रॉन वीजली, वो अब एक बैंकर बन चुका था लंदन में। हैरी वॉज टीचर एट हॉगवर्ट्स। हैरी अब हॉगवर्ट्स में पढ़ाता था। एंड वॉज कॉल्ड ऑफन टू स्टॉप दीज, और उसको अक्सर इन चीज़ों को, इन मिथिकल क्रीचर्स को बचने के लिए इनको बुलाया जाता था, ताकि वो नॉर्मल वर्ल्ड में एंट्री ना कर सकें। और अब रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी परेशान होगी, तो हैरी मुझे छोड़ने मेरे घर तक आया। उससे मैंने कहा कि अब डिनर करके जाए। ही लव्ड। फिर उसने हम सब के साथ डिनर किया, और उसने मेरी मम्मी का बनाया हुआ डेज़र्ट भी बहुत पसंद किया। उसके बाद मैं अपने रूम में गया, रबिंग माई आइज़ विद स्लीप। आई थिंक हैरी हैड ट्राइड टू कास्ट अ स्पेल, क्योंकि मुझे लगता है हैरी ने कुछ स्पेल यानी मंत्र पढ़ने की कोशिश कुछ मेरे ऊपर की होगी, ताकि मैं ये दिन भूल जाऊँ। लकी फॉर मी हिज चार्म डिड नॉट वर्क फॉर मी। उसका जादू मुझ पर नहीं चल पाया, और इसी वजह से मैं आपको ये सारी कहानी बता पाया। दैट वॉज योर एस्से, जो कि काफ़ी फिक्शनल और काफ़ी इमेजिनेटिव था। ये आप लर्न करेंगे अच्छे से, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ताकि आप अपने एस्से में इसको अटेम्प्ट कर सकें, अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू क्लास।